Good morning. Mm, Definitely still in agribusiness, I guess we are. So we are talking about agricultural credit system in India, and uh, throughout we have learned about NABARD, and then we have already learned about its functions and so many things included throughout the credit system in India in agricultural rural area or a sector. So throughout whatever we have seen, please focus more on the details for your MCQs and start writing notes so that you get familiar with whatever we have been learning in this class. Okay. From now on, we are going to take a simple, little bit different turn. Okay. And I hope that will be a very productive term for you because it's not just one way communication, and I don't want that. एका बाजूने कम्युनिकेशन छान वाटत नाही. सो आपण तसं करूया. सो फॉर दॅट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ दिस. यप. काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं इंटरेस्ट सबवेन्शन बद्दल. तर ॲक्च्युली इंटरेस्ट सबवेन्शन काय असतं याची एक छोटी डेफिनेशन इकॉनॉमिक टाइम्स तुम्हाला सांगतो. आणि लेट्स सी व्हॉट इज द इकॉनॉमिक टाइम्स सबवेन्शन म्हणजे काय. ओके. सो सबवेन्शनचा ॲक्च्युअल अर्थ आहे लिटरली मीन्स ग्रँट ऑफ मनी गिवन बाय गव्हर्नमेंट. ओके. पण आपण जेव्हा सबवेन्शन इंटरेस्ट म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ थोडासा वेगळा होतो. कुड यू प्लीज म्यूट युअर सेल्फ because it's really sometimes very annoying. I know you are not doing it purposefully. तुम्ही मुद्दामून करत नाही आहात. पण काय होतं दरवेळी मला ते चेक करून तुम्हाला म्यूट करणं हे थोडंसं कठीण जातं. ओके. सो लेट्स सी व्हॉट इज सबवेन्शन. तुम्ही माझ्याबरोबर वाचताय राईट. तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसते राईट. सो सबवेन्शन मीन्स grant of money by the government in the context of budget. It is interest subvention. The government paying part of interest on a loan. म्हणजे तुम्ही जेव्हा असं म्हणता की 2% इंटरेस्ट रेट कमी झाला कारण इंटरेस्ट सबवेन्शन आहे, त्याचा अर्थ असा असतो की 2% जे इंटरेस्ट आहे कमी झालेलं ते वरचे 2% बँकेला नुकसान नाही सहन करायला लागत, तर गव्हर्नमेंट ॲज अ सबसिडी म्हणून बँकेला ते 2% देतं आणि उरलेले टक्के शेतकऱ्याकडून मिळणं अपेक्षित असतं. आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन. जो भी 2% अगर बोल रहे हैं हम कम हो रहे हैं या फिर आधा हो रहा है इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है इसका मतलब होता है अगर 10% इंटरेस्ट है और 2% सबवेंशन हो गया तो इसका मतलब 8% को मिलने वाला है इंटरेस्ट, तो वो 2% ऊपर वाले वो एज अ सब्सिडी गवर्नमेंट बैंक को दे देता है. ओके. और बाकी के 8% किसान को भरने पड़ते हैं. So that was about interest subvention. Okay, let's go back to the site where we are coming from. Okay, the next one, what we thought about negotiable warehouse receipts. Okay, last day we have seen about this. What are the negotiable warehouse receipts? Let's see again what do we get from the economic times about negotiable warehouse receipts. Okay. So food minister, it was article from the year 2017, not so far from today. Um, uh, Food Minister Ram Vilas Paswan today rolled out negotiable warehousing receipts in electronic form, that is warehousing receipt. Okay, negotiable warehousing receipt in electronic format that farmers can use to avail bank credit easily without fear of losing or misusing it. So receipt असल्यामुळे त्या without misusing तुम्हाला वापरता येणार आहे. He also unveiled a web portal for registration of warehouses in a faster and more transparent manner. Negotiable warehouse receipt, which was launched in 2011 originally, allows transfer of ownership of that commodity stored in warehouse without having to deliver the physically commodity. In the sense, आप actually जो अगर आपके पास वो निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिट है तो आपका जो स्टोर्ड अनाज है वो उसका कमोडिटी का ओनरशिप आपके पास रहता है एज अ किसान, तो वो ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट फिजिकली ट्रांसफरिंग दैट कमोडिटी.
Okay, these receipts are issued in negotiable form, making them eligible as collateral for loans. Okay, warehouse receipts are made negotiable under the Warehouse Development and Regulation Act 2007, and it is regulated by the Warehouse Development and Regulatory Authority, WDRA. WDRA. Okay, till now the receipts were issued manually. Now it will be given in electronic format, which will not only benefit farmers but banks and other stakeholders too, Paswan said at the launch of the event. सो थोडक्यात तुम्हाला लक्षात आलं असेल तर इट्स लाईक तुमच्याकडे काहीतरी प्रूफ असणं की माझ्याकडे हे एवढं अनाज आहे जे स्टोरेजमध्ये आहे आणि कुठच्याही क्षणी मी ते तुम्हाला ट्रान्सफर करू शकतो. यामुळे काय होतं, मोर सिक्युरिटी क्रिएट होते आणि जेव्हा शॉर्ट टर्म लोन घेण्याची वेळ येते किसानला, फार्मरला, तेव्हा काय होतं, पटकन त्याला ते मिळू शकतं अगेन्स्ट दिस सिक्युरिटी की त्याच्याकडे ऑलरेडी धान्य तयार आहे. वेळ पडली तर जे कोणी लोन देणारे असतील ते धान्य घेऊन जाऊ शकतात. सो दिस इज लाईक मोर सिक्युरिटी मेजर. तुमच्या लक्षात येत आहे, काल आपण जे म्हटलं होतं की किसान को एक्चुअली सिक्योरिटी देने के लिए अगेंस्ट लोन बहुत कम चीजें मिलती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. ओके, सो आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज किसान क्रेडिट कार्ड. तुम्हाला दिसते राईट माझी स्क्रीन? आपल्या जनरली एटीएम कार्ड सारखं, डेबिट क्रेडिट कार्ड सारखंच कार्ड आहे आणि त्याचा वापर करू शकतो किसान. सो इंटरेस्ट रेट कॅन बी ॲज लो ॲज 2%, कारण ते फार्मरसाठी दिलेले असतात. सो किसान क्रेडिट कार्डवरचे इंटरेस्ट रेट हे खूप कमी असू शकतात, 2% पर्यंत. कोलॅटरल फ्री लोन अप टू ₹1.60 lakh. सो कोलॅटरल फ्री लोन मिळू शकतं किसानला 1.6 lakhs पर्यंत. क्रॉप इन्शुरन्स स्कीम इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड टू फार्मर्स. सो ज्यांच्याकडे हे कार्ड असतं त्यांना आपोआप त्यांच्या क्रॉपला क्रॉप इन्शुरन्सने सिक्युअर केलं जातं. Following up to the insurance coverage is provided up to 50,000 against permanent disability or death. So अगर फार्मर का मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ का प्रॉब्लम हो जाता है तो 50,000 अप टू 25,000 प्रोवाइडेड अगेंस्ट अदर रिस्क. तो और किसी अगर रिस्क की वजह से आपके किसान का कुछ नुकसान होता है तो 25,000 मिलता है. रीपेमेंट पीरियड इज बेस्ड ऑन द हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग पीरियड ऑफ द क्रॉप फॉर विच द लोन अमाउंट वॉज टेकन आउट. जर समजा तुम्ही रेग्युलर क्रेडिट कार्डचं बघितलं तर रेग्युलर क्रेडिट कार्ड में क्या करना पड़ता है आपको कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड यूज किया तो वो मंथ के एंड तक आपको वो पे करना पड़ता है जनरली. लेकिन यहाँ पर रीपेमेंट की मेथड अलग है. ये आप रीपेमेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग पीरियड ऑफ क्रॉप. तो उसके ऊपर लोन ले सकते हैं आप. लोन अमाउंट अप टू ₹3 lakhs कैन बी टेकन आउट बाय द कार्ड होल्डर. तो मतलब इसका लिमिट लोन अगर लेना है तो 3 lakhs तक का आप देख सकते हो. कोलैटरल इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन लोन्स अप टू ₹1.6 lakhs. We have already told. Farmers get highest rate of interest on the savings in their Kisan credit card account. तो इन द सेंस अगर वो सेविंग कर रहे किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट पर तो वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर सेविंग अकाउंट. सिंपल इंटरेस्ट रेट इज चार्ज्ड एज लॉन्ग एज द यूजर्स मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट. तो जनरली whenever we are taking loan or any advances that we are receiving, we are doing payment in compound interest, चक्रवाढ व्याज. ओके, तो ये रेट इंटरेस्ट रेट से हम पे करते हैं, लेकिन फार्मर्स के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट रेट रहता है अप टू द पेमेंट. अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बिकम्स एप्लीकेबल. तो अगर ये प्रॉम्प्ट पेमेंट करते रहते हैं किसान तो उनको सिंपल इंटरेस्ट रेट से मिलता है, लेकिन फिर पेमेंट अगर मिस हो गया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दॅट वॉज अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड. तुम्हाला या काल कन्सेप्ट आल्या होत्या आणि मला वाटतं मी त्याच्यावर फार कमी बोलले जेव्हा बोलले तेव्हा. सो मला वाटलं मी त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती द्यावी. यू ओके विथ होपफुली दॅट. लेट्स सी द डिफेक्ट्स इन ॲग्रिकल्चर मार्केट. मला आठवत आहे की आपण ऑलरेडी त्याचे 4 डिफेक्ट्स, चौथ्या डिफेक्ट पर्यंत आलो होतो. सो फर्स्ट वॉज लॅक ऑफ स्टोरेज फॅसिलिटी, second was distress sell, third was lack of transportation, fourth is unfavorable mandis. The condition of the mandis are also not at all favorable to the farmers. In the mandis, the farmers have to wait
for disposing their produce for which there is no storage facilities. सामने देखा देयर इज अ लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो मंडी में क्या होता है, बहुत फार्मर्स आते हैं और फिर इनको जो डिस्पोज करना होता है अपना खुद का गुड, वो डिस्पोज करने में 2 दिन 3 दिन कितने भी दिन लगते हैं। और उस टाइम आपका अगर पेरिशेबल गुड है जैसे वेजिटेबल, तो क्या हो जाता है, वो खराब होने लगते हैं, मतलब वहां पर स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है। दस द फार्मर्स विल हैव to take the help of middleman or dalal who take away, it's sorry, there must be some spelling mistake, who take away a major share of profit and finalize the deal either in his favor or in favor of uh, अरहाटिया और होलसेलर्स। मतलब जो दलाल होते हैं वो उनके पास थोड़ा बहुत स्टोरेज फैसिलिटी होता है, उनका अपर हैंड रहता है डील पे। तो क्या होता है, फार्मर्स को उनके साथ डील करना पड़ता है मंडी में आकर, और वो क्या करते हैं जनरली होलसेलर्स या फिर जिनसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं उनके फेवर में डील करते हैं, तो फार्मर्स को कम प्राइस मिलती है। अ स्टडी मेड बाय DS सिंधु revealed that the share of middlemen in case of rice was 31%, in case of vegetables was 29.5%, and in case of fruits it was 46.5%. So it's a huge, what we can say, a percentage that middleman is getting. Dalal agents, they are getting 31% और 46% आउट ऑफ होल मार्केट सिचुएशन। सो उसमें से भी होलसेलर को तो ज्यादा मिलने वाला है, फिर दलाल को मिलेगा, और फिर किसान के लिए बचता कितना है, बहुत ही थोड़ा बचता है। Okay, so that is unfavorable mandis. Then the fifth one is intermediaries. Again, we are talking about dalal. A large number of intermediaries exist between cultivator, that is farmer, and the consumer. All the middlemen and dalal claim a good amount of margin and thus reduce the returns for the cultivators. In the sense, क्योंकि ये ज्यादा कमीशन लगाते हैं, तो जो फायदा होने वाला है किसान को वो बहुत ही कम हो जाता है। ओके, unregulated markets. There are huge number of unregulated markets which adopt various malpractices. तो जनरली क्या होता है, मंडीज और ये सब मार्केट्स है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा मार्केट्स है जहाँ पर किसान आकर बेचते हैं, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी और एनी अदर ऑफिशियल अथॉरिटी। Okay, there are huge number of unregulated markets which adopt various malpractices. Prevalence of false weights and measures, lack of grading and standardization of products in village markets in India are always going against the interest of ignorant, small and poor farmers. So lack of market interest. There is absence of market interest or information system in India. So information system क्या, market access नसणं हा एक ह्यूज प्रॉब्लेम आहे भारतात, बिकॉज किसान इंफॉर्मेशन सिस्टम के मतलब लिए खुद को एबल समझता ही नहीं है, उसके पास उतना नॉलेज रहता ही नहीं है। इंडियन फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द रूलिंग प्राइजेस of their produce prevailing in the big markets. तो बड़े बड़े मार्केट में जो रूलिंग प्राइजेस चल रहे हैं उसके बारे में किसान को कुछ पता ही नहीं होता। Thus they have to accept any unremunerative price for their produce as offered by traders and middlemen. और क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता, they have to accept anything that is given by trader. Okay, so lack of market intelligence. Then eighth one is lack of organization. There is a lack of collective organization on the part of Indian farmers. Indian farmers are not united at all. A very small amount of marketable surplus, जो मार्केट में बेचा जा सकता है, ऐसा सरप्लस इज बीइंग ब्रॉट टू द मार्केट्स बाय द ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स। छोटे फार्मर्स करके बहुत उनके पास जो भी सरप्लस अवेलेबल है वो मार्केट में लेके आते हैं, लीडिंग टू द हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सबको मिलकर बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। Accordingly, the Royal Commission of Agriculture has rightly observed, so long as farmer does not learn the system of marketing himself or in a cooperation with others, जब तक फार्मर खुद से या फिर औरों के कोऑपरेशन से लर्न नहीं करता कि ये सिस्टम मार्केटिंग की कैसी चल रही है, तब तक ही कैन नेवर बार्गेन बेटर। तो इसके पास निगोशिएबल पावर नहीं रहेगी विद द बायर्स of his produce who are very shrewd and well informed. तो buyers जो दलाल्स है, तो जो एजेंट्स है, they are very well informed and वो उतना बिजनेस बहुत ही
तकनीकी मोड में, इन द सेंस वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट में चलाते हैं, तो इनके साथ अगर आपको खड़ा रहना है, आपका प्रोड्यूस अच्छे दाम में बेचना है, यू नीड टू हैव a very well information of market, at least by yourself or in a cooperative mode. Okay, so that's what was said, and it can be the answer for lack of organization of farmers. Ninth one is lack of grading. Indian farmers do not give importance to the grading of their produce. Generally काय क्वालिटीचं प्रोडक्ट बनतंय तुमच्या शेतात याबद्दल शेतकऱ्यांना बिलकुल काही पडलेलं नसतं जनरली, असं म्हटलं जातं इथे. ओके, दे हेसिटेट टू सेपरेट द क्वालिटेटिव्हली गुड क्रॉप्स फ्रॉम द बॅड क्रॉप्स. सो ते काय करतात, ते थोडं कंटाळ करतात किंवा ते करत नाही. दे नेवर डिस्ट्रीब्यूट अमंग गुड क्वालिटी अँड बॅड क्वालिटी. ओके, दे नेवर डिस्ट्रीब्यूट दिस क्रॉप्स, देयरफॉर दे फेल टू फेच अ गुड प्राइस फॉर देयर क्वालिटी प्रोडक्ट. सो क्या होता है, जो मिक्स्ड प्रोड्यूस रहता है जिसमें गुड और बैड क्वालिटी क्रॉप्स है, तो जनरली क्या होता है, दलाल्स बोलते हैं अरे इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो कम प्राइस में ले लेते हैं. इसका मतलब क्योंकि इनका क्वालिटी मेंटेन्ड नहीं है, उनको कम प्राइस में लेना पड़ता है. लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस. इंस्टीट्यूशन में जो फाइनेंस मिलता है वो भी कम यूज हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है. In the absence of adequate institutional finances, Indian farmers have to come under the clutches of traders and moneylenders for taking loans. हमने देखा ये. After harvest, they have to sell their produce to those moneylenders at unfavorable terms. So उनको ही बेचना पड़ता है जो उनको लोन दे रहे, because that's under their contract. Unfavorable conditions. Farmers are marketing their product under advised circumstances. So they are really बाकी के एडवाइस से और बहुत ही वी कैन से घटिया कंडीशन में बहुत ही मार्केटिंग करना पड़ रहा है फार्मर्स को. अ ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर फोर्स्ड बाय द रिच फार्मर्स, traders, money lenders to fall into their trap to go to distress sale of their produce by involving them into vicious circle of indebtedness. इंडेटनेस मतलब कंटिन्यूस लोन्स के चक्कर में पड़ना. तो क्या होता है, ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, वो कंट्रोल्ड किए जाते हैं रिच फार्मर्स से, ट्रेडर्स से, मनी लेंडर्स की वजह से, और उनको मतलब उनको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है. मतलब किसी भी दाम में उनको सेल करना पड़ता है अपने हार्वेस्ट का, और फिर उनको उनके लोन्स पड़ते जाते हैं क्योंकि उनका कुछ फायदा नहीं होता. ऑल दीज वर्सन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द विलेज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. सो इसमें क्या हो जाता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बहुत ही गड़बड़ा जाता है, बहुत ही डिटीरियोरेट हो जाता है. जो पुअर होते हैं वो पुअरर बनते जाते हैं, वो जो रीचर है वो रीचर बनते जाते हैं. सो दैट्स हाउ इनइक्वालिटी ग्रोज इन द विलेजेस. Okay, so these were the defects of agricultural marketing in India. Okay, and now we are going to see the recent activities in agricultural marketing. Okay, agriculture marketing में आजकल क्या हो रहा है वो हम देखने जा रहे हैं. आतापर्यंत तुम्ही जे ऐकलं, जे डिफेक्ट्स ऐकले ते प्लीज लक्षात ठेवा, नोट्स बनवा त्याच्या. ओके, लेट्स सी the recent initiatives in agricultural marketing. Recognizing the need for setting up a national market, the 2014-15 budget stated that the central government would work closely with the state governments to reorient their respective APMC Act to provide for establishment of private market yards, प्रायव्हेट मार्केट्स. इन द सेन्स 2014-15च्या बजेटमध्ये असं सांगण्यात आलं की सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट एकमेकांबरोबर काम करून एपीएमसी ऍक्टमध्ये जे काही प्रोव्हाइड केलेत रेकमेंडेशन ते सुधारण्याचा प्रयत्न करते. ओके, प्रायव्हेट मार्केट्समध्ये, प्रायव्हेट मार्केट यार्डमध्ये आणि पब्लिक मार्केट यार्डमध्ये. The budget also announced that the state government would also encouraged to develop farmer markets in town areas to enable them to sell their produce directly. So without middleman or something, directly farmer को farmer बेच सकते हैं. ये करने के लिए भी state government को मतलब encouragement दिया जाएगा. So उसके लिए पहला था, the Department of Agriculture DAC has issued comprehensive advisory to state to go beyond provisions of Model Act and
declare the entire state a single market with one license valid across entire state and removing all restrictions on movement of agricultural produce within the state. तो स्टेट के अंदर एक ही लाइसेंस चलेगा जिससे किसान सभी जगह पर अपना जो हार्वेस्ट है वो बेच सकता है। और इसके लिए मॉडल एक्ट को इग्नोर मतलब थोड़े जो प्रिवेंशन है उसके बियॉन्ड जाकर मतलब उसके परे जाकर इनको ये काम करना पड़ेगा। स्टेट को ऐसा ऑर्डर जारी किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने। सो एक ही लाइसेंस कहीं पे भी बेचेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट वाज फर्स्ट वी कैन से रीसेंट इनिशिएटिव। ओके, ये हमने पहले दो देखे बजट में क्या चेंज हुआ एपीएमसी एक्ट इम्प्रूव करने के लिए। और उसके साथ साथ ये भी पता चला हमें कि बहुत सारे छोटे मार्केट्स बनाने के लिए जिसमें कोई मिडलमैन ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इनकरेज करेगा। The second one is in order to promote development of common national market for agricultural commodities through e-platform। मतलब ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जनरली अब ये देखो सब ई या फिर ऑनलाइन टर्म्स में आ रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ओके, इट्स बिकॉज ऑफ वी कैन से फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी, फॉर मोर रीच। अभी बहुत लोगों के पास इंटरनेट तो रहता है या फिर रहना चाहिए, दैट्स व्हाट टुडेज नीड इज। ओके, और इसका इंटरनेट का एक्सटेंसिव रीच इतना है कि आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली अगर एक इशू होता है ऑर्डर तो किसी भी सिटीजन को डायरेक्टली आकर वो पढ़ने के लिए अवेलेबल होता है। ओके, और इसकी वजह से अगर ऐसा ना हो, इंफॉर्मेशन लैग ना हो, इंफॉर्मेशन गैप कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास कुछ था और जो किसानों के पास पहुंचा ही नहीं। That is one of the improved digitally hack we can say. Okay, let's see. Common market in for agricultural commodities through e-platforms. The department has approved rupees 200 crores for the central sector scheme for promotion of national agricultural market through agri-tech infrastructure fund ATIF. So इसके लिए 200 crores का जो फंड है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए वो दिया गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। प्रमोशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मतलब पूरे कंट्री में एक ही मार्केट रहेगा थ्रू एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ATIF। ओके, याद रखना है, टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2014-15 to 2016-17। अंडर द स्कीम it is proposed to utilize the ATIF for migrating towards a national market through the implementation of common e-platform for agri marketing across all state। तो सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, पूरे के पूरे स्टेट्स के लिए एक कॉमन मार्केट होने की मतलब होने का इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए ये 200 करोड़ यूज करने जो ATIF के लिए प्रोवाइड किए गए। ओके, on the request of the central government, a number of state governments have exempted the marketing of fruits and vegetables from purview of APMC Act। तो APMC Act में क्या होता है, हमने देखा था कि अगर हिमाचल प्रदेश में एक एप्पल मतलब बन रहा है तो वो महाराष्ट्र में आने के लिए उनको बहुत लाइसेंसिंग लगता है और उनको मतलब वैसा अलाउ भी नहीं किया जाता। ओके, अगर सिर्फ किसान आकर यहाँ पर बेच रहा है तो ये एपीएमसी एक्ट के जो प्रोविजंस है वो थोड़ा इग्नोर करने का भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट कर दिया था। और वो रिक्वेस्ट पे number of state governments have improved their practices. The Small Farmers Agribusiness Consortium SFAC, Small Farmers Agribusiness Consortium, has taken the initiatives for developing Kisan Mandi in Delhi with a view of providing a platform to FPO for direct sale of their produce to prospective buyers, totally obviating or reducing the unnecessary layers of intermediaries in the process। So ये जो SFAC है, इन्होंने किसान मंडी निकाली दिल्ली में, जहां पर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डायरेक्ट सेल। Really sorry that I got cut out. Internet issues. Yep. So we are talking about तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसते राइट? दिसते होपफुली, ठीक है। आई गेस वी कैन स्टार्ट विद दैट कि एसएफसी ने किसान मंडी बनाई दिल्ली में
कि डायरेक्टली फार्मर वहां पर आकर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचे, इंटरमीडियरीज नहीं हो इसके बीच में. दे प्लान टू स्केल देयर एक्टिविटीज इन अनदर स्टेट्स बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिल्ली किसान मंडी. तो ये दिल्ली किसान मंडी का जो एक्सपीरियंस है वो लेकर और भी स्टेट्स में ऐसे मंडी बनाए जहां डायरेक्टली कंज्यूमर टू मतलब व्हाट से प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ऐसा हो सके, इसके लिए काम करेंगे ऐसा बोला है. ओके, I have given you the link for extra reading article in agricultural marketing. ये एक हिंदू द हिंदू टाइम्स ऐसा जो बहुत ही बड़ा पेपर है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, द बिजनेस स्टैंडर्ड है, लाइव मिंट करके है. तो ये सब बहुत ही बड़े और बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम, बहुत ही टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन देते हैं. और दिस इज वन ऑफ दिस आर्टिकल, लेकिन इट इज फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग फॉर योर सेल्फ. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमने देखा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या करना चाहिए और उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं. ओके, दिस इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज वेल नोन फॉर द स्मॉल फार्मर्स it is well known that small farmers do not have economic strength to retain produce with them till the market prices are favorable. मतलब स्मॉल फार्मर्स के साथ इतना स्ट्रेंग नहीं होता कि जब तक अच्छे प्राइस आए तब तक वो अपना जो प्रोड्यूस है वो होल्ड करके रखे. ओके, at a network of rural godowns will enable small farmers to enhance their holding capacity in order to sell their produce at a remunerative price and avoid distress sell. So specifically अगर ऐसा नेटवर्क बना जहाँ गोडाउन्स का, जहाँ पर ये स्मॉल फार्मर्स अपना जो हार्वेस्ट है वो रख सकते हैं, तो उनके पास वो पावर आ जाएगा स्टोरेज का, जिससे उनको डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ेगा और उनको रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा, मतलब फायदेशीर प्राइस मिले. Okay, hence during the 12th plan period, estimated investment for agricultural marketing infrastructure, grading and standardization AMIGS. So 12th plan period मध्ये या इन्व्हेस्टमेंट करायची योजना आली AMIGS मध्ये, ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग अँड स्टँडर्ड्स मध्ये. Accordingly, Government of India has launched Gramin Bhandaran Yojana with effect from 1st April 2001. The scheme has been subsumed into capital investment subsidy subscheme agricultural marketing infrastructure AMI of integrated scheme of agriculture marketing, that is ISAM scheme with effect from 1st April 2014. सो 2014 से ये जो ग्रामीण भंडारण योजना थी वो सब्ज्यूम्ड की गई एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ISAM स्कीम में, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग. ओके, 2014 से, मतलब ओरिजिनल स्कीम 2001 की थी जो सब्ज्यूम्ड हो गई 2014 के नए स्कीम में ISAM में. ओके, AMI scheme, Agricultural Marketing Infrastructure Scheme, is temporarily stopped with effect from 5th August 2014 for general category promoters due to exhaustion of fund. So ये जो सिस्टम थी वो बंद की, मतलब टेम्पररीली बंद की गई, पॉज की गई क्योंकि फंड्स नहीं थे. However, the scheme is open for SC/ST promoters and for promoters of northeastern region. So जो promoters है जो SC/ST categories के हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इनके लिए ये स्कीम अभी भी खुली है. Okay, let's see. The main objectives of scheme include creation of scientific storage capacity, मतलब अच्छी सी storage capacity basis on full scientific knowledge with allied facilities in rural areas to meet out various requirements of farmers for storing farm produce, processed farm produce, agricultural inputs, etc., and prevention of distress sale by creating the facility of pledged loans and marketing credit. So simply ये स्कीम क्या है कि आप अच्छे से स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करो सो दैट जो भी प्रोसेस्ड फार्म प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल इनपुट है, ये सबके लिए एक अच्छा प्लेस हो सो दैट आप यहाँ पर मार्केटिंग क्रेडिट भी अवेल कर सकते हो एज अ फार्मर. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो, टू प्रमोट इनोवेटिव्ह अँड लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीज इन ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. मला वाटतं
खूप बेसिक आहे, मी वाचतेय तुमच्यासाठी कारण मला वाटतं हे खूप बेसिक है, आपण परत परत बघितलंय जेव्हापासून सुरुवात केली तेव्हापासून. अगर इसमें कुछ शक होता है, अगर मुझे लगता है ये कुछ डिफिकल्ट है, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट. अगर आपको लगता है कि एक समझ में नहीं आ रहा है पार्ट, प्लीज आस्क मी आउट. ओके. To promote innovative and latest technologies in agricultural marketing infrastructure, to promote competitive alternative agricultural marketing infrastructure by encouraging investments from private and cooperative sector. तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पब्लिक को काम करना है, लेकिन कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर को भी इस फील्ड में इन्वॉल्व कर लेना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के. To promote direct marketing to increase market efficiency with the aim of enhancing farmers' income through reduction of intermediaries and handling channels. मतलब ये एम क्या है कि फार्मर्स का इनकम बढ़ाना है, फार्मर्स आय बढ़ाना है और उसके साथ साथ जो बीच वाले इंटरमीडिएरीज है, हैंडलिंग चैनल से उनको रिड्यूस करना है. Okay, to promote creation of scientific storage capacities for storing farm produce, processing farm produce and agricultural inputs etc. to reduce post harvest and handling losses. तो लॉसेस कम करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करना, एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, प्रोसेस्ड फार्म प्रोड्यूस के लिए और ओवरऑल फार्म प्रोड्यूस के लिए ये भी एम है. टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए और अच्छे मार्केट में बेचने के लिए ये ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन करना और क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है. दैट इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस. टू प्रमोट इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स दैट इज कन्फाइड अप टू प्राइमरी प्रोसेसिंग स्टेज ओनली. मतलब वैल्यू चेन्स प्रोड्यूस करना मतलब एक गुड अगर प्रोड्यूस होता है तो वो वहां पर ही उसका प्रोड्यूस होना, उसका प्रोसीजर होना, मैन्युफैक्चरिंग होना, उससे कुछ टू एनेबल वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स विथ प्राइमरी प्रोसेस. तो क्या हो जाता है, सिर्फ फार्मर को ही उसके मॅन्युफॅक्चरिंग का भी फायदा होता है. मतलब याला आपण जोड व्यवसाय असं म्हणतो. ओके. To create general awareness and provide training on various aspects of agricultural marketing, including grading, standardization and quality certification. तो ये जो बहुत ही अहम चीजें है, बहुत ही इम्पॉर्टंट चीजें है, सो यांच्यावरती जनरल अवेअरनेस क्रिएशन करायचं, फार्मर्स पर्यंत प्रोव्हाइड करायचं की कशा प्रकारे ते त्यांचं स्टँडर्डायझेशन, ग्रेडिंग, क्वालिटी ऑफ क्रॉप वाढवू शकतात, त्याच्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे. Okay, so these are the features of the AMI policy or the scheme we were seeing. Let's see the salient feature. First one is wholesale marketing of food. The consumption and production of marketed food are okay. Let's see ki let me just provide attendance sheet first, and then I have something in my mind that I want to talk to you about, that I will talk, and then I guess if there is time, then we can talk about this. Okay. So तुम्हाला अटेंडन्स शीट मिळाली का बघा. Okay, cool. So what I was about to talk to you was yes. So आपल्याला एक काइंड ऑफ अपोजिट एक्सपीरियंस फील करायचा है. ओके, हमें एक अपोजिट एक्सपीरियंस फील करवाना है, जहाँ पर आप मेरी जगह पर एक छोटा एकदम से 4-5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दे सकते हो, बता सकते हो. वेरी इजी टॉपिक्स विल बी देयर. और मुझे पता है जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो आप सब ऐसे आईज रोल करेंगे, वगैरह. होइलच, ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. दिस विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कंडक्ट अ कॉर्पोरेट मीटिंग. जैसे आगे जाकर कॉर्पोरेट मीटिंग या फिर कोई भी टाइप की मीटिंग आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी, आपको इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. फिर आपके पास ऑलरेडी रिटर्न मटेरियल होगा जो आप सामने रख सकते हो और मुझे और आपके क्लास वाले लोगों को बता सकते हो.
और वैसे भी यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं मीटिंग में, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत लोगों के सामने भी नहीं बोलना पड़ेगा। ओके, तो सिंपली मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये जो 2-3 टॉपिक है, अभी के लिए मैंने सिर्फ 2-3 टॉपिक दिखे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको इस पर सिर्फ 5 या 6 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन करवाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन करवाना है और मुझे वो बताना है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इसमें, तो मुझे प्लीज मैसेज करो। ओके, मुझे पता है अभी के लिए आप क्या कर रहे हो, अभी के लिए आप आपके अटेंडेंस लगवा रहे हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मैं जो बोल रही हूँ उसके बारे में भी सुनो। आपको उसके साथ क्या करना है, सिर्फ 5-6 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनवाना है और हमारे सामने प्रेजेंट करना है। और लेट्स सी, हम एक छोटा कंपटीशन कंडक्ट करते हैं और उसके हिसाब से जिसका प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगेगा, आई विल गिव वन प्राइज टू हिम और हर। ओके, yeah, I'll explain it to you. We're going to conduct one simple, not a competition, it's just a simple procedure where you will have to present a topic given by me in using 4 to 5 slides uh, of your own choice. आप बहुत you can add so many other things in it if you want to make it more interesting, and basis some grounds we will make sure कि आप we will make sure कि आपका interest आपका जो topic है वो interesting हो. I'll help you everything. I'll help you through every procedure, how to make PPT, how to make. I'll make group of those 3 to 4 person that are going to opt for this, and we can conduct this kind of competition. So अगर आप में से कोई बोलता नहीं है, then I am going to push them to take part. Okay, I am going to force कि कौन करेगा. लेकिन अगर आप voluntarily आगे आते हो, if you opt for this competition or for this presentation, let's not call it competition, for this presentation, very yeah, it's interesting, Nabil, I know, that's why I'm telling you. So then I'll just help everything. Okay, I'll tell them everything, each and everything. And the basic thing is there might be English, Hindi, Marathi versions available for you. In the sense you can talk in any of these 3 language, not completely. Basis should be English, but other things can be in any language. So let's see if I get responses from you, or else I will talk to you in a next week with you. I will talk to you about these things in the next week from Monday. I will tell these students specifically to talk to me. Otherwise, message me if you are interested. I'm really intrigued to see कि कितने मुझे मैसेज आते हैं. ओके, मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं. इफ आई गेट मोर रिस्पॉन्सेस 2-3-4 से ज्यादा, वी कैन अरेंज फॉर देम एनी टॉपिक. इट्स लाइक रियली चैलेंजिंग फॉर यू. आप बता सकते हो मुझे कि बेटर क्या तरीका हो सकता है पढ़ाने का. इट्स माइट बी इम्प्रूवमेंट पॉइंट फॉर मी टू. ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीक. और तब तक अगर आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, प्लीज मैसेज मी पर्सनली, नॉट ऑन द ग्रुप, पर्सनली मैसेज करना है. ओके, सो हैव अ नाइस डे अहेड, हैव अ हैप्पी वीकेंड. बाय बाय.